کون خامیازہ بھگتے گا؟ بھائی سکرات الموت بہت خطرناک ہے، موت کی تکلیف بہت سخت ہے۔ تم کہہ رہو کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، اس نے کلمے سے انکار کر دیا، میں نہیں جانتا کیا ہے کلمہ، کون ہوگا اس کے ذمہ دار؟ پھر کیا کریں؟ آؤ حدیث کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم بسورۃ یاسین، لقنوا موتاکم بسورۃ الاخلاص، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی مرنے والا ہو تو اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اس سے مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، کہ تو سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں جواب ملا مرنے والے کے قریب کھڑے ہو جاؤ، زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگو، اس کی آواز وہ تمہاری آواز میں اپنی آواز ملائے گا، کلمہ طیبہ اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا اور مصطفیٰ کے نام پر اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا قریب کھڑے ہو جاؤ، اس کو قریب کھڑے ہونے کے بعد میں تلقین کرو، اس کے پاس پڑھنے لگو، کیونکہ وہ تمہاری آواز میں اپنی آواز ملائے گا، کلمہ شریف پڑھ لے گا، اور کلمہ شریف پر خاتمہ ہو گیا تو انشاءاللہ زندگی حل ہو جائے گی، زندگی حل ہو جائے گی۔ بعد مرنے کے عذاب قبر حق ہے نہیں ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر میں کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سہارے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیے۔ دنیا فانی ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ ایک حدیث پاک تقریباً بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ و مکہ فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، جب گزرے مصطفیٰ نے دو قبروں کو دیکھا اور ان دو قبروں سے آوازیں آ رہی تھی، قبروں سے آوازیں آ رہی تھی، آوازیں، اور ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، عذاب۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ سنو، یہ جو دو قبریں ہیں نا، ان قبروں میں سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسی آوازیں؟ آقا نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ، صحابی تھے، صحابی، وہابی بدعقیدہ نہیں تھے۔ یا رسول اللہ کان تو آپ کے ہیں، ہمارے بھی ہیں، جو آپ کھاتے ہو ہم کھاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کو کیسے آ سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا آوازیں آ رہی ہیں، آئی ایگری یا رسول اللہ، ہمیں اتفاق ہے یا رسول اللہ، آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، ہمیں نہیں آ رہی، کیونکہ یا رسول اللہ آپ کا مقام اور ہے، ہمارا مقام اور ہے، آپ ہماری طرح تھوڑی نہ ہیں۔ آقا نے فرمایا یعذبان فی قبورہما، ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ کتنا ہی بڑا عالم ہو، مجھے لے جاؤ، انہیں لے جاؤ قبرستان میں اور پوچھو یہ بتاؤ کہ کون کون سی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں بتا سکتا ہوں؟ یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ قبروں کی کبھی آواز سنی ہے آپ نے؟ قبروں میں عذاب ہوتا ہے، کبھی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی ہے، لیکن مصطفیٰ کا علم دیکھو، مصطفیٰ کی سماعت دیکھو۔ ارے مصطفیٰ دنیا کا بھی جانتے ہیں اور قبروں کے حال بھی جانتے ہیں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں پر عذاب ہو رہا، اب آگے توجہ رکھیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا لا یعذبان فی کبیر، ان دونوں پر جو عذاب ہو رہا وہ کسی بڑے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بڑے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا ثم قال بلا کان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه۔ آقا نے ارشاد فرمایا سنو سنو، ان دو جو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے ان کا جرم یہ تھا، ان کا گناہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخوری کیا کرتا تھا۔ اللہ، دو باتیں، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور دوسرا غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ اب مصطفیٰ کا علم دیکھو، مصطفیٰ یہ بھی جان رہے ہیں عذاب ہو رہا ہے اور مصطفیٰ یہ بھی جان رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا،
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब तवज्जो रखें, आका ने फरमाया एक तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था, गीबत किया करता था। गीबत की बड़ी बीमारी है भाई, बहुत बड़ी बीमारी है, चुगली की बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे अंदर आपने कोई बुराई देखी, मेरे अंदर आपने कोई बुराई देखी, बुराई है, मेरे अंदर बुराई देखी है, और उस बुराई को मेरी तजलील की नियत से आप चौराहों पे या किसी से बयान कर रहे हो, तो ये गीबत और चुगली के हुक्म में आती है। मेरे अंदर है तब कर रहे हो तब, और अगर मेरे अंदर वो बुराई ही नहीं है तो वो बोहतान है, बोहतान। इसकी सजा बहुत बड़ी है। ये चुगलीखोरी, ये गीबत हमारे मर्द हजरात के अंदर तो है ही, लेकिन औरतों के अंदर बेजा बेजा, चाहे मैयत हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई सा फंक्शन हो, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आज मेरा भाई चौराहों पे बैठने के बाद, और इस टाइम प्रधानी के इलेक्शन करीब है, जितनी भी चौपालें लग रही हैं, अल्लाह रसूल की बात नहीं होती है इन चौपालों पर। अगर किसी चौपाल पर, किसी बैठक पर अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही हो तो मुझे बताओ, रोक दो। चौराहों पर, चौपालों पर, बैठकों पर होता क्या है? या तो इमाम की बुराई या फिर मुसलमान भाई की बुराई, अल्लाह। इन दो बातों के अलावा नहीं। उसके पास इतनी दौलत कैसे आ रही है? उससे वहां से मिल लिया, उसने वहां से चोरी कर ली, उसने वहां से डकैती डाल ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसके घर पर ऐसा हो गया, उसके घर पर ऐसा हो गया, उसका वो ऐसा है, उसका वो ऐसा है। अरे इंसान, अपने गिरेबान में झांक। आज जो तो दूसरों की मां बहनों की मजाक उड़ा रहा है, कल ये नंबर तेरे साथ भी आ सकता है, ये तेरे साथ भी आ सकता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग हश्र में ऐसे होंगे और रब इन्हें बुलाएगा, और जब रब की बारगाह में जाएंगे और अपनी नेकियों को देखेंगे ना, नेकियों को, अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह, अर्ज करेंगे या अल्लाह, हमने तो नमाजें भी बहुत पढ़ी थी, हमने तो रोजे भी बहुत रखे थे, या अल्लाह हमने तो ये भी बहुत किया था, हमने तो ये भी बहुत किया, हमारी नेकियां कहां गई? नेकियां। मेरा रब फरमाएगा मेरे फुला बंदी की बुराई की थी, फुला चौराहे पे बैठकर, फुला बैठक पे बैठकर बुराई की थी, हाँ की थी। मेरा रब फरमाएगा मैंने तेरी नेकियां उसे दे दी है, मैंने तेरी नेकियां उसे दे दी हैं। और एक शख्स वो होगा जब अपनी नेकियों को देखेगा खुशो खर्रम हो जाएगा, अर्ज करेगा मौला मेरे पास तो इतनी नेकियां थी नहीं, ये नेकियां कहां से आ गई? गैब से आवाज आएगी फुला बंदे ने तेरी बुराई की थी और उस बुराई का पर तूने सब्र किया था, अल्लाह ने उसकी नेकियां तेरे पल्ले में डाल दी है। तो दूसरों की बुराई करके, दूसरों का नाप कर अपनी नेकियों को बर्बाद मत करो, खुदा का वास्ता। अगर जिंदगी गुजारनी है तो सच्चे पक्के मुसलमान बनकर गुजारो, ताकि तुम्हारे उठने से भी पता चले, तुम्हारे बैठने से भी पता चले ये दुनियादार नहीं है, ये तो मदीने के ताजदार का गुलाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताकि ये पता चले चुगलखोरी बहुत बड़ी बीमारी है। अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा इससे बाज आ जाओ। सबको कब्र में जाना है, सबको कब्र में जाना है। अब आगे सुनो क्या हुआ। मुस्तफा ने ये भी फरमा दिया किस वजह से अज़ाब हो रहा है। अब इसका हल देखो, ये आका है, मुस्तफा है। आका ने फरमाया दूसरा चुगलखोरी किया करता था। आका ने इरशाद फरमाया फदआ बिजरीदा, फदआ बिजरीदा। कब्र पर बेरी की झाड़ी डालते हो ना, बेरी की झाड़ी, उसका मकसद बता दूं क्यों डालते हैं, हदीस से साबित कर दूं क्यों डालते हैं। अरे भाई बेरी की झाड़ी तो डालते हैं ना कब्र पर, डालते क्यों हो वो सुन लो और बात खत्म कर लो। हदीस से सुनो, फदआ जरीदा। मुस्तफा ने एक खजूर की टहनी मंगाई, खजूर की टहनी मंगाई। फकसरहा किसरतैन, और उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए। फवदा अला कुल्ली कब्रिन मिनहुमा, फिर दोनों टुकड़ों को दोनों कब्रों पर एक एक लगा दिया।
एक टहनी के दो टुकड़े किए, एक को एक पर नस्ब किया, दूसरे को दूसरे नस्ब किया। ये सहाबा के सामने नया काम था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फकील लहू या रसूल अल्लाह लिमा फअलता हाज़ा, ए आका हमने ये तो नया काम देखा है, मुस्तफा ये आपने क्यों किया? एक तो टहनी मंगाई है, टहनी के दो टुकड़े कर दिए हैं, एक को एक की कब्र पर लगा दिया है, दूसरे को दूसरे की कब्र पर लगा दिया है। या रसूल अल्लाह इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या होगा? तो मुस्तफा ने फरमाया लअल्लहु अन युखफ्फिफ अन्हुमा मालम तैबसा। ए मेरे सहाबा सुनो, जब तक ये हरी भरी रहेगी अल्लाह की बारगाह में तस्बीह व तहलील करती रहेगी और अल्लाह इनके गुनाहों को माफ करके इनके दर्जात में बुलंदी कर देगा। ये मुस्तफा है, ये आका है। मुस्तफा ये भी जानते हैं कि कब्रों में अजाब हो रहा है, मुस्तफा ये भी जानते हैं किस वजह से अजाब हो रहा है, और मुस्तफा ये भी जानते हैं क्या करने से अजाब दूर हो जाएगा। तभी तो आला हजरत ने कहा है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुस्तफा ने टहनी लगाई, बात खत्म करूं। मुस्तफा ने टहनी लगाई और उसकी इल्लत ये थी, उसका रीजन ये था, उसका रीजन ये था कि वो जब तक हरी भरी रहेगी, जब तक हरी भरी रहेगी अल्लाह की बारगाह में तस्बीह तहलील करती रहेगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मरहूम के गुनाहों को माफ कर देगा और उसके दर्जात में बुलंदी कर देगा। अब जो आप कब्र पे बेरी की झाड़ी डालते हैं वो सूखी डालते हैं या ताज़ा डालते हैं? बताइए। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये शिर्क है, बिदअत है, नई नई चीज है, ये भी कहते हैं ना, लेकिन हदीस से सुनो, मैंने हदीस सुनाई आपको, हदीस सुनाई। आप जो बेरी की टहनी डालते हैं इसीलिए डालते हैं ना, हरी भरी होती है। उसका मकसद यही है कि जब तक कब्र पर रहेगी हरी भरी अल्लाह की तस्बीह तहलील करेगी। एक बात मुझे याद आ रही है, एक बेरी हरी भरी चीज अल्लाह की तो तस्बीह तहलील कर रही है और ये हट्टा कट्टा इंसान रातों दिन अल्लाह का खा रहा है, उड़ा रहा है, इतनी इतनी लंबी जबानें चला रहा है, 2-2 फीट की जबानें बाहर आ रही हैं, दूसरों पे तरह तरह की बुराइयों में लगा पड़ा है, रात को 12-12, 1-1 बजे चौराहों पे चक्कर लगाता है, लेकिन ये फजर की नमाज में क्यों नहीं उठ पाता? अरे घास पेड़ पौधे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। इंसान तू तो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने तुझे सारी मखलूक में सबसे अच्छा पैदा किया है, फिर तेरी जबान अल्लाह की तस्बीह के लिए क्यों नहीं खुलती है? ये सोचने वाली बात है या नहीं है? तो जो हम टहनी लगाते हैं उसका मकसद ये है जब तक हरी भरी रहती है अल्लाह की बारगाह में तस्बीह तहलील करते रहते हैं। अच्छा, मज़ार पे जो फूल डालते हैं ये भी है ना, कभी फूल डालना शिर्क है, शिर्क है, बिदअत है। मज़ार पे जो फूल डालते हैं, गुलाब के फूल लेके जाते हो तो सूखे हुए लेके जाते हो या ताज़ा ताज़ा लेके जाते हो? ताज़ा ताज़ा। तो क्यों? मकसद यही है कि ताज़ा ताज़ा चीज अल्लाह की बारगाह में तस्बीह तहलील करती है। आप कहोगे जनाब उन्हें तो तुम्हारे सवाब की जरूरत है नहीं, वो तो अल्लाह के वली हैं, वो तो गुनाहगार है नहीं, फिर क्या मतलब? अबे उन्हें जरूरत नहीं, हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। हम अपनी मुरादें लेकर अल्लाह के वलियों की बारगाह में पहुंचते हैं और जब फूलों का नजराना पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में वो फूल तस्बीह तहलील करते हैं। अल्लाह के बंदे को, अल्लाह के बंदे को, अल्लाह का बंदा उन फूलों की खुशबू में झूम जाता है, रब की रहमतें नाज़िल होती है। जो बंदा जिस गरज से जाता है अल्लाह वालों के सदके उनकी गर्जों को पूरा कर दिया जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, उनकी गर्जों को पूरा कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे इश्काल, उसके जवाबात मैं दे सकता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत है, समझाने का वक्त नहीं है। फिर कभी मौका मिला तो मैं करूँगा, और अगर अभी वक्त ज़्यादा हो गया हो तो मैं अपने तमाम हज़रात से माजरत तलब करता हूँ। कलमा शरीफ आप पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।